Okay, so let's start our peak state programming. Peak state, move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, think and feel that you are running an Olympic race and you are winning. Standing in the Okay, same let position, everybody. just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. Very nice. And you say to yourself, I am the winner. I am the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Yes, Thank you. And now you say to yourself, yes, we all are I am the winners. winner. Yes, I am the winner. And now we say to ourselves, I can. Repeat, I can. I can. I will. I will. Must. I must. can. I will. I must. I can. Thank I you. will. I Thank you. must. Thank you so much. Okay, so let's start our chapter 22. Pari, would you like to read today? Yes. Okay, I'll read. Okay, thank you, Pari. Yeah, okay. Thank you so much. Okay, let me share the screen. So again, today's chapter is the magical chapter. Before your very eyes. आपको आपके सपने कब कहाँ पूरे होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. तो आज का चैप्टर पूरा उसी के बारे में है. What do you all see in this picture? किसी को डिस्क्राइब करना है? हिंदी में भी कर सकते हो. रेहान आंटी, would you like to describe the picture? Rabbit, हाँ मीता जी. cap, from cap rabbit is coming out, हम्म. है ना, और स्पार्कल हो रहा है, उसमें से जादू निकल रहा है साथ में उसके निकलने से, हम्म. और एक मैजिक स्टिक रखा हुआ है वहां पे. एग्जैक्टली. हम्म. तो अभी ये मैजिक स्टिक भी आपके हाथ में ही है ना? मैजिक स्टिक आपके हाथ में है और यहाँ पे जैसे एक मैजिशियन की हेड पड़ी है, मैजिशियन की वो स्टिक है और उसमें से रैबिट निकल रहा है और उसमें से बहुत सारे मैजिकल स्पार्कल्स है. इवन दो द होल रूम इज सो डार्क. यानी आपको आपके सपने आपके हाथ में ही है पूरे करने. आप ही जादूगर हो और आपके पास ही ये जादू की जो स्टिक है जिससे आप अपने सब सपने साकार कर सकते हो. ओके, सो फरी यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर. Okay. This world, after all, are sciences, is still a miracle, wonderful, incredible, magical, and more to
whosoever will think of it. Thomas Carlyle, 1795, 1881. तो जो भी सोचेगा, हाँ, राइटर एंड हिस्टोरियन थॉमस कार्लाइल, तो उन्होंने ये थॉमस कार्लाइल ने क्या बोला कि हमारा जो वर्ल्ड है, आफ्टर ऑल साइंस एंड साइंसेस स्टिल अ मिरेकल। साइंस में भी क्या होता है, साइंस भी क्या एक्चुअली क्या करता है कि ये जो ऑलरेडी सब चीजें हैं उसी को ढूंढ के फिर उसी को प्रूव करता है। कहीं ना कहीं पे थियरीज पहले होती है, हाइपोथेसिस होती है, उसके बाद कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद हाँ जो भी होता है मतलब प्रूविंग होता है कि हाँ ये जो भी हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है, मतलब ट्रूथ है। तो साइंस भी एक्चुअली क्या है, नेचर को ही ढूंढ ढूंढ के इसमें से ही सब चीजें लाके हमें सामने प्रूव करनी होती है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा नेचर के अंदर है। तो सेम वे में साइंस के बाद भी ये पूरा जो वर्ल्ड है पूरा मैजिकल एंड मिस्टिकल है एक्चुअली, और आप बोल सकते हैं मिरेकल भी है, इनस्क्रूटेबल है, जो हमें बिल्कुल ना समझ पाए वैसी चीजें हैं। और ऑफ कोर्स इट इज मैजिकल, और आप जो सोचते हैं वही वो आपके सामने मिरेकल्स लाके रखेगा। अगर आप सोचते हो कि हाँ वर्ल्ड इज अ रियली मिरेकुलस प्लेस, तो वैसा ही आपके साथ होगा। आपको भी मिरेकल्स, आपके साथ मिरेकल्स होंगे, और आपको जब मिरेकल्स होंगे वो दिखेंगे भी। तो ये हमारी सोच के ऊपर ही होता है पूरा। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all of my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and carried them with one on a piece of paper every day. Whenever had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as as though I had received it. With my number one desire, the desire I More than any. wanted more than anything else. I I kept it constantly in my mind, and I Would say the magic. know where it. Okay, Actually, it's a I double think you have to pages. Yeah. scroll up. No, it's a 2 pages. So Okay. yeah, remove the screen on your mobile so you can see this. Remove the screen to the either left or right so you'll see it. Did you see it, Pari? You're on mute. Do you want me to do the one page if you're finding it difficult? No. I think no. Actually, there was some network issue. Oh, okay. No problem. So Okay. yeah, you can read from here. I kept it constantly in my mind. Yeah. Okay. I kept it constantly in my mind, and as I enjoyed the short flight with No, I these would beautiful, say the magic words. Thank you. On the right side. I am not able to see that page. Did you scroll your screen to the left or Okay. right? Yeah. Oh, I'm not able to find where it is. Okay, let me do the single page view. Single page, yes. Yeah. Yeah, so you can start here from here. Would say the magic words. Okay. I kept it constantly in my mind, and I would say the magic words. Thank you for 1 second. Ah,
Thank you for it multiple times in a day and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list. And when I had new desires, I would add them to my list. या तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी डिजायर्स इन्होंने टॉप 10 डिजायर लिखी थी। उस टाइम पे तो लगता ही नहीं था कि ये किसी भी तरह से पॉसिबल है। ना तो उनके पास इतने पैसे थे, वो यूएस में आए थे। उन्होंने बस अभी ये सीक्रेट मूवी का जो भी था उन्होंने स्टार्ट किया था रोंडा बर्न ने। और उनके पास ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी उस टाइम पे कि ये सब डिजायर्स कंप्लीट होगी। तो भी even though it didn't seem possible, she kept on going. She would always carry her desire in her pocket. All the top 10 desire वो हमेशा अपने पास रखती थी, अपने पॉकेट में रखती थी। और जितनी बार भी हो सकता था दिन में निकाल के वो उसके लिए इतना सारा थैंक यू करती थी और ऐसे ही फील करती थी जैसे ऑलरेडी वो ट्रू हो चुकी है। ये बहुत जरूरी है कि आपकी जो भी बर्निंग डिजायर होगी, जो हम पावर बुक में भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपकी टॉप डिजायर्स होगी, वो आप वैसे भी आपके माइंड में ही चलती रहेगी वो हमेशा। या तो आप ये कर सकते हो कि पॉकेट में छोटा सा लिस्ट बना के ले लो और जब भी आपको टाइम बीच में मिलता है पूरे दिन में, वो निकाल के उसको पढ़ो और ऐसे फील करो कि वो ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे रोंडा बर्न करती थी। और पूरी उनकी टॉप 10 डिजायर एक के बाद एक पूरी उनके आंखों के सामने आके मैजिकली अपीयर होती है, जिससे मैजिकली वो सब डिजायर्स थ्रू हो गई। यानी डिजायर्स तो बहुत बड़ी-बड़ी थी, तो भी उस टाइम पे भले वो लग रहा था कि ये नहीं, अगर आपका सपना बहुत छोटा है तो समझ लो आपका सपना है ही नहीं। हमेशा बड़े-बड़े सपने देखना सीखो। जैसे अजीम प्रेम जी बोलते हैं कि अगर आपका सपने पे कोई हंस नहीं रहा है, तो आपका वो सपना है ही नहीं। उसको सपना नहीं बोल सकते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि सपने भी अपने ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं मैं तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सपना देखती हूँ या देखता हूँ। अरे जो भी अंदर से आता है, बड़े सपने आते हैं, बड़े सपने देखो। कहाँ कब पूरे होंगे आपको ही नहीं पता चलेगा। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. तो ये इनकी जो उनकी लिस्ट में ये वाली डिजायर थी, उनकी जो लॉन्ग लिस्ट थी, उनकी ओरिजिनल लिस्ट, उसके अंदर एक लिस्ट थी, उसमें एक डिजायर ये थी कि उनको बोरा बोरा नियर टहीती जो प्लेस है, वहां पे उनको ट्रैवल करना था। तो शी स्पेंट अ होल वीक ओवर देयर। और फिर क्या हुआ कि एक बहुत ही अच्छी चीज उनके साथ हुई। तो जब व्हेन शी वाज फ्लाइंग टू द मेनलैंड ऑफ तहीती, जहाँ से वो फिर अपने घर की तरफ वापस आने के लिए जब वो ट्रैवल कर रही थी, तो एयरप्लेन कहीं पे पैसेंजर्स को लेने के लिए एन राउट हुआ। तो वहां पे पहले फ्लाइट बिल्कुल ही मतलब एम्प्टी थी, बहुत कम लोग होंगे। पर उसके बाद ये नेटिव जो टहीटियंस आए, इतने जबरदस्त लोग थे वो टहीटियंस, एकदम ही फुल ऑफ लाइफ पीपल, पूरे इतने स्माइलिंग फेसेस, इतनी हैप्पीनेस के साथ वो सब लोग थे जो उसकी फ्लाइट में चढ़े उसके बाद। और आगे देखते हैं क्या है उनकी स्टोरी। Pari, you can read. You are on mute. Yeah, I will read. Okay, as I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why
they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be in airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they are were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and travel around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list. And the reason I was on the plane was before my very eyes gratitude. तो बिकॉज ये सब डिजायर उनकी क्यों कंप्लीट हुई? शुक्राना करने से, और एक के बाद पूरी होती गई। तो ये जब ये डिजायर पूरी हुई, उसके बाद ये एयरप्लेन में ये सब इतने अच्छे अच्छे लोग आए, इतने हैप्पी ब्यूटीफुल पीपल वहां से चढ़े। ये भी एक सुप्रीम का ही एक रीजन था वहां पे भी, कि क्यों ये सब लोग उसी प्लेन में चढ़े उस टाइम पे। और ये पूरे जितने भी लोग थे, वो इतने ग्रेटफुल लोग थे, इतने शुक्राना वाले लोग थे कि वो एक दूसरे के साथ थे, इसलिए वो मतलब शुक्र कर रहे थे। वो वहां पे ये एरोप्लेन में कहीं जा रहे थे, इसके लिए वो ग्रेटफुल थे। फिर वो कितनी चीजों के जस्ट दे वर ग्रेटफुल टू बी अलाइव। तो इतनी सारी चीजों के लिए वो ग्रेटफुल लोग थे, जो भी थे बहुत शुक्रगुजार लोग थे वो। और उनके बाद वहीं पे इनको रोंडाबन को स्ट्रक हुआ कि अरे ये तो मेरी जो फाइनल लास्ट डिजायर थी वो आज पूरी हुई है, और वो भी कैसे, ये सब ग्रेटफुल लोगों के साथ। कितना जबरदस्त, यानी इज़न्ट इट अ मिरेकल कि उनकी ये लास्ट वाली जो है वो पूरी होती है। और एयरप्लेन में भी ऐसे ही लोग चढ़ते हैं, वैसे लोग उन्होंने उन्होंने बोला कि आई कुड हैव स्टेड ऑन अ एयरप्लेन एंड ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड विद देम। इतने अच्छे लोग थे वो कि जिनके साथ वो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर सकती थी, इतने अच्छे लोग थे वो। तो जो भी था, ये जो भी इनकी जो डिजायर्स कंप्लीट हुई, क्यों? क्योंकि वो इतनी शुक्रगुजार थी सभी चीजों के लिए, अपनी लाइफ में शुक्रगुजार थी, अपने ड्रीम्स के लिए शुक्रगुजार थी, अपने खुद के लिए शुक्रगुजार थी। तो इसका भी एक रीजन यही था। और जब एरोप्लेन में इतने सारे ग्रेटफुल लोग आए, तो उनको एकदम से एहसास हुआ कि ये सबका जो रीजन भी था फुलफिल होने का, वो ग्रेटिट्यूड था। कितनी बड़ी बात है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before. And that is truly priceless. तो ये तो आप From the सबने भी time, नोट किया होगा कि चलो डिजायर्स तो हमने लिख दी और हम ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हैं, वो सब ठीक है। पर ग्रेटिट्यूड के मतलब डिजायर्स तो चलो फुलफिल होगी कि नहीं, जो भी है, पर आपकी लाइफ कितनी हैप्पीनेस से बढ़ जाती है जब आप शुक्राना करते हो। एक एक दिन में जो आपका जो ट्रू सेल्फ है, आपका ट्रू सेल्फ क्या है? जॉय, हैप्पीनेस, ग्रेटफुल पर्सन। आपकी जो ट्रू है वो अंदर से पीस है, पीसफुल है, लव है। ये सब आपकी जो क्वालिटीज है वो उभर के बाहर आती है। और नो मैटर वो आप इतना मतलब ग्रेटफुल जब होते हो, तो आप इतना हैप्पीनेस फील करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। एक अलग तरह की लाइफ हो जाती है। चलो ड्रीम्स तो होंगे ही फुलफिल, पर आप खुद इतने हैप्पी पर्सन हो जाते हो। आप सबको लगता होगा, राइट? जिसने भी ये बहुत फीलिंग्स के साथ ग्रेटिट्यूड किया होगा, उनको अब तक तो ऐसा लगता होगा कि भले कुछ भी होता है, कभी-कभी नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है, कभी-कभी ये वो कुछ भी होता है, पर एट द एंड आप इतने अंदर से सैटिस्फाइड फील करते हो, अंदर से आप इतने हैप्पीनेस फील करते हो। एक अलग अलग ही तरह की जॉय फील होता है अंदर से ही। एक खुशी फील होती है, जो कुछ भी करने से हमें कभी फील नहीं हुई पहले, जितना भी हम कुछ भी कर लेते थे।
Okay, so you can read further. Okay, from the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. List was 4 years. To give you an idea of enormous enormousness of Enormousness, receiving all my enormousness. Oh, yeah, of receiving all my desires in that moment of time. When I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I could be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owned on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. हाँ, तो ये रोंडा बर्न का जो सबसे बड़ी डिजायर थी वो सीक्रेट मूवी बनाने की थी। तो सीक्रेट मूवी में इनको बहुत चैलेंजेस आए थे। लोगों ने उनको यही बोला था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो तू कर ही नहीं सकती। ये तो जो ये आइडिया ही है वो तो बेकार आइडिया है। यानी आपको भी आपके डिजायर जब आप फॉलो करते हो, कुछ करते हो ऐसा, तो आपको भी आस-पास के लोग कहेंगे कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो आप कर ही नहीं सकते हो। आपको तो बस अपनी डिजायर के साथ, अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ना है। और इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी डिजायर्स को लिस्ट किया हुआ है, अगर आप देखोगे। तो कब उन्होंने ये डिजायर लिस्ट खड़ी की थी? जब उनकी कंपनी $2 million इन डेब्ट थी। सोचो, कब ये सब डिजायर्स उन्होंने बनाई थी? जब उनकी कंपनी पूरी बैंकरप्ट हो चुकी थी, ऑलमोस्ट डेट में थी, पूरी डेट्स में थी। जब उनको ये बुक मिली थी, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। और ऑलमोस्ट वो ऐसे ब्रिम पे खड़ी थी कि जहाँ पे वो अपना होम सब कुछ वो अपना लूज़ करने वाली थी। उसके थोड़ा-सा ही उसके पास था, जो भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर था, उसी के ऊपर उसका घर चल रहा था। और इ इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी जो फर्स्ट डिज़ायर थी, तो वो तो थी कि सीक्रेट को लाना है सबके मिलियन लोगों के सामने। पर उनकी और डिज़ायर्स क्या थी? एक तो बिग हाउस हो ओशन के सामने, बिल्कुल समुंदर के सामने एक बड़ा-सा अच्छा-सा हाउस हो। फिर उसकी उनकी डिज़ायर थी कि एक्सोटिक प्लेसेस पे उनको ट्रैवल करना है। पूरे डेट्स उनके खत्म हो गए हैं, उनकी कंपनी एक्सपांड कर गई है, उनके रिलेशनशिप सभी अच्छे हो गए जितने रिस्टोर करने थे, जो पहले वो हो चुके थे, मतलब जो भी था उनका लाइफ में। और फिर उनकी ये भी डिज़ायर थी कि अपनी फैमिली की लाइफ को क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। उनको खुद को भी हेल्दी होना है अगेन। इतनी सारी अनलिमिटेड एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ वो ऐसी बॉडी भी करनी है उनको। तो ये सब उनके डिज़ायर लिस्ट में थी अलोंग विद ऑल मटीरियल थिंग्स। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब उनकी भी हमारे जैसी ही हालत थी। मतलब मुझे लगता है कि माइनस में थी उनकी उस टाइम पे। अगर उस टाइम पे वो सबको सुनती कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है या है, उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा और आगे बढ़ते गई। अपनी ग्रैटिट्यूड के पावर पे उन्होंने विश्वास रखा। आगे बढ़ती गई, उनको खुद को रास्ते मिलते गए। क्योंकि जब सुप्रीम आपके साथ होता है, भले ऑर्डील्स आती है, नेगेटिव सिचुएशंस आती है, कुछ भी आता है, पर आप अडग रहते हो कि नहीं मुझे तो करना ही है। और उनकी ये पूरी डिज़ायर लिस्ट है वो साथ में लेके ही हमेशा घूमती थी वो। ओके, सो यहाँ पे वो अपनी फर्स्ट डिज़ायर की बात कर रही है कि
जब उनकी फर्स्ट डिजायर उन्होंने उनको मिली थी, ब्रिंगिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू माय वर्क, उनके वर्क के थ्रू, क्योंकि वो वैसे भी पहले प्रोड्यूसर रह चुकी थी, तो उन्होंने ये मूवी बनाई जो यूएस में आई, ऑस्ट्रेलिया में थी, या वहां से यहाँ पे आई, क्योंकि ये जो आपने जो अगर मूवी देखी होगी सीक्रेट मूवी, तो उसमें जितने भी लोग हैं मोस्टली अमेरिका में ही रहते हैं, तो सब लोगों को उन्होंने लिया और पूरी मूवी बनाई। जब मूवी का भी टाइम था, मैंने हीरो बुक में अभी पढ़ा कि मूवी को भी रिलीज करने का जब टाइम था, तब भी उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, और ये एक अनयूजुअल रिलीज हुई थी उस टाइम पे, पूरे इंटरनेट पे ये रिलीज हुई थी उनकी मूवी। तो ये इतना सारा होने के बाद भी उनकी पूरी डिजायर्स कंप्लीट होते गई उनकी लिस्ट पे जो भी थी, और विद इन 4 इयर्स पूरी डिजायर्स उन्होंने कंप्लीट कर ली। यानी आप सोचो, ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर है। आप जितना शुक्राना करोगे, जितना आप ग्रेटिट्यूड में अपने आप को रखते हो पूरे दिन में, ऐसा नहीं कि 10 चीजें सुबह सुबह लिख दी और हो गया। आपको खुद को एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमारा स्कूल में एक स्ट्रक्चर होता है कि या ये होमवर्क करना है, ये होमवर्क करना है। तो आपको अगर अभी कोई एरियाज है, पर्टिकुलर एरियाज, अगर मनी एरिया है, हाउस का एरिया है, होम का एरिया है, या आपको हेल्थ रिलेटेड एरियाज है, तो ऐसा नहीं कि आज आई ये प्रैक्टिस और आज ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपको आत्मसात करनी है सब प्रैक्टिस। उसका मतलब है आपको सबकॉन्शियस में उतारनी है ये सब प्रैक्टिसेस। तो मनी के बारे में ऐसा नहीं कि आज उसकी प्रैक्टिस आई थी और मैंने कर लिया, वैसे नहीं होता है। मनी के लिए एवरी डे आपको ग्रेटफुल होना है अगर आपको मनी चाहिए तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। आप अपना खुद का एक स्ट्रक्चर रखें। मैंने ऐसा स्ट्रक्चर रखा हुआ कि मैं मेरे पासवर्ड्स ही मैंने ऐसे रखे हुए हैं जो मुझे हमेशा ही याद दिलाते हैं टू बी ग्रेटफुल फॉर। मैंने अपने पासवर्ड्स को ही पीस, हार्मनी ऐसे ऐसे रखा है, लव। तो जब भी मैं कुछ खोलती हूँ या कुछ भी करती हूँ, जॉब पे भी मैंने ऐसे ही पासवर्ड्स रखे हैं। तो पूरे दिन में मुझे याद आता रहता है कि हाँ, मुझे खुदा को, भगवान को, गॉड को शुक्राना करना है। तो उस टाइम पे मैं उनको इतना शुक्राना करती हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ उस टाइम पे। तो आपको भी अपना ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाना है जिससे आपका शुक्राना आपका बीइंग हो जाए। पूरे दिन आप शुक्राना में ही जिए, शुक्राना में ही उठे, शुक्राना में ही आप सो जाए। क्योंकि वैसे भी पूरा दिन हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, राइट? सोचना हमारा एक पार्ट है। इतने 86,000 सेकंड्स में हम कितने सारे हमें थॉट्स आते ही रहते, आते जाते, आते जाते। अगर हम हमारे थॉट्स में ही ऐसा कर दे कि पूरे दिन हम शुक्राना के वाले ही थॉट्स लाएं, तो सोचो आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आ जाएगी। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। So now it's your turn to use gratitude magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desires list that you created. Read through each sentences and desires on your list. And for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feeling as much as gratitude as you can, as if you have it now. तो आपको भी यही करना है। डिजायर आपने जो लिखी थी 13th डे पे, आपने जो भी डिजायर अपनी लिखी थी, उसको लिस्ट को आपको लेना है और एक एक उसके ऊपर ठहर के 1 मिनट के लिए, एग्जैक्ट 1 मिनट, यहाँ पे बिल्कुल भी वैसा मत करना कि कम हो गया और ज्यादा हो गया। यानी ज्यादा हो गया तो कोई बात नहीं है, पर एटलीस्ट 1 मिनट तो यहाँ पे आपको विजुअलाइज करना है। ऐसा हो तो अपने अपने फोन के अंदर टाइमर रख देना, अगर आपको लगता है कि आपका मतलब आपको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो टाइमर रख रख के एक एक के ऊपर ठहरना, एक एक मिनट उसको विजुअलाइज करना, और उसको ऐसे ही अंदर माइंड में फील करना कि जैसे आपको ऑलरेडी वो चीज मिल चुकी है।
ये करना बहुत जरूरी है आपके लिए। और मैं बोलूंगी अगर आपकी वो बर्निंग डिजायर है तो आप पूरे दिन में आज आज की तो ये प्रैक्टिस है ही कि पूरे दिन में आपको 2-3 बार निकाल के वो ये सेम चीज करनी है। पर मैं बोलूंगी कि अगर आपकी डिजायर इतनी स्ट्रांग है और आपको लगता है कि ये आपको चाहिए ही चाहिए, तो आपको ये रोज ये करना है कि आपकी छोटी डिजायर लिस्ट को ले लो अपने, या तो अपने फोन के स्क्रीन पे रख दो, और जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आपको याद आता है, अपनी डिजायर्स को लेके विजुअलाइज करो। बहुत जरूरी है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Yeah. Carry your desire list with you today in your pocket on, on at least 2 occasions in the day. Take out your list, read through it, and feel as much as gratitude for each one as you can, as through you have received it. हाँ, तो If सेम चीज के आपको 2 बार एटलीस्ट 2 ओकेजन्स आज के लिए, मतलब आपकी प्रैक्टिस जो कल आप करेंगे उसके लिए एटलीस्ट 2 टाइम तो ऐसा करना ही है कि आपको ये अपनी डिजायर की लिस्ट निकालनी है, अपने सपनों की लिस्ट निकालनी है, उसको रीड करनी है, और जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो आपको वो फील करना है। मैं बोलूंगी कि आप वापस उसको विजुअलाइज करो अगर कर सकते हो 1-1 मिनट के लिए, और उसको फील करो जैसे वो आपको मिल चुकी है। ओके, लेट्स रीड फर्दर। if you want your desires to come more quickly, it it I would highly recommend that you carry your desire list with you in your pocket or purse from this day forward, and whenever you have time, open it, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible थ्रू द through the मैजिकल magical power of gratitude. यस, सो आज के इन्होंने बोला कि जब आपकी अगर कोई सपना पूरा हो भी जाता है तो उसको आप चेक ऑफ कर दो लिस्ट में से निकाल के और ऐड करते जाओ। ओके, तो ये आपको करना है। और अभी आज के बाद आपको ये अपनी डिजायर लिस्ट को वॉलेट के या पर्स में रख के उसको हमेशा ही रीड करना है। उसके लिए जितना भी आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो इतना आपको फील करना है। और जब भी, यानी उन्होंने यहाँ पे ये भी बोला कि अगर आप मेरे जैसे होंगे तो आपको भी जब आप क्रॉस करते हो डिजायर लिस्ट में से, चेक ऑफ करते हो, तब आपको भी आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, जो आंखों खुशी के आंसू होंगे। सुप्रीम के लिए वो एक प्यार होगा कि जो जो चीजें मुझे इम्पॉसिबल लग रही थी वो बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ शुक्राना, सुप्रीम का ये शुक्राना, उनकी वजह से ये सब पूरा हुआ। कितनी बड़ी बात होती है आपको पता नहीं। मेरे भी जो छोटे छोटे सपने थे जो जब पूरे होते थे मेरी भी आंखों में आंसू होते थे कि हाँ, कितनी ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। हमारी कोई औकात नहीं है ये सब सपने पूरे करने के लिए। पर जब हम सुप्रीम के ऊपर छोड़ते हैं, जब हम शुक्राना का पावर यूज करते हैं, तब चीजें अपने आप होने लगती है। और वो इतनी अच्छे से होती है कि हमको पता भी नहीं चलता। मतलब इट्स रियली रियली अमेजिंग द वे एवरीथिंग वर्क्स आउट। और अगर कोई आपकी कोई ऐसी लिस्ट में कोई ऐसी चीजें नहीं भी मिले तो भी आपको शुक्राना करना है कि जो सुप्रीम के आपके लिए जो भी ज्यादा अच्छा होगा वो आपको देंगे। तो ये भी एक चीज होती है। कभी कभी मैंने देखा है लोग अपने सपनों के साथ अटैच हो जाते हैं। अगर आप अटैच हो रहे हो या अगर आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो तो वो अगेन एक नेगेटिव फीलिंग है। यहाँ पे आप क्या करें, आप सुप्रीम के ऊपर सरेंडर करके आप उसको अच्छा फील करके आप छोड़ रहे हो, आप उसको पकड़ के नहीं रखना है। तो ये भी चीज आपको एक ध्यान में रखनी है कि सपने, अगर सपने हैं तो सपनों को
इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, उसको लिखना, उसको छोड़ देना सुप्रीम के ऊपर, ये बहुत जरूरी है। उसको फिर बोलोगे कि यार मैंने तो कब से लिखा, मैं तो ये मेरा तो ये पूरा ही नहीं हो रहा है, फिर बीच बीच में डाउट करते रहोगे, कभी पूरा नहीं होगा। उसका मतलब है आप सुप्रीम के ऊपर डाउट कर रहे हो कि आपको ये मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है। अगर मान लो और आपका कोई सपना था और आपको अगर नहीं भी मिलता, तो आपको उसमें यकीन रखना है कि मेरे लिए जो भी अच्छा है इससे बेहतर ही कुछ सुप्रीम ने मेरे लिए सोचा होगा। तो ये भी एक अलग बात होती है। मोस्टली आपके सपने पूरे होंगे ही, जो भी आपके अगर अंदर से वो सपने आए हैं। ओके, सो लेट्स रीड मैजिक प्रैक्टिस नंबर 22। Sorry. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Carry your desire list with you today in your pocket on at least 2 occasions in the day. Take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. सो आप सबको आज की प्रैक्टिस समझ में आ गई? आज की प्रैक्टिस सबको समझ में आ गई ना? Yes. एग्जैक्टली। Yes, yes, ओके, yes. थैंक यू। हाँ, तो हमने ये कल सेंट ऑगस्टीन तक पढ़ा था। तो कल के हमारे उसमें क्या था, हमने क्या पढ़ा था? इमेजिन, रिसीव, फील इट एंड रिसीव इट। तो उसका ही वो क्रिएशन जो प्रोसेस होती है, उसको ही हमने कल मोर इलाबोरेट किया था कि हाँ, हमको कैसे करना है। हमें ऐसी चीजों पे ध्यान देना है जो हमें चाहिए, जो हमारी डिजायर्स है। ऐसी चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है जो हमें नहीं चाहिए। पूरे दिन में ऐसी कितनी सारी चीजें आती है। अच्छा, कल की प्रैक्टिस का कोई किसी को शेयर करना है यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले? किसी को शेयर करना है? आई मीन आपके लिए वो आज की प्रैक्टिस थी। मेरे लिए कल का दिन जबरदस्त, यानी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ऐसी कई ऐसी चीजें आई पूरे दिन में जो मुझे कुछ ना कुछ सिखा के भी गई, और उसका आउटकम बहुत ही अच्छा आया था कल। जैसे ये मैंने लिखा था कि मैंने 2-3 चीजों के लिए आउटकम लिखा था कि हाँ, मुझे मैग्निफिसेंट आउटकम वो चीज़ों के लिए चाहिए, तो वो चीज़ें अच्छे से, बहुत अच्छे से हो गई। और मैं कल एक्चुअली मुझे एक एक आपके साथ शेयरिंग करती हूँ, शायद सभी को इससे फ़ायदा होगा। 2 शेयरिंग है एक्चुअली। तो जैसे इन्होंने बोला था कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आता है, तो उस टाइम पे भी आपको तो यही सोचना है कि मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। तो कल मैं मेरी बेटी को मुझे लेके जाना था बर्थडे में। तो मैं जॉब पे थी, और जॉब पे कल अभी हमारा एक बंदा वहाँ पे नहीं है, हमारा जो आईवी रूम का एक बंदा था, वो एक थोड़ा 1-1.5 महीने के लिए आउट है, बिकॉज़ उसकी कोई इंटर्नशिप चल रही है, बिकॉज़ ही इज़ स्टडीइंग नर्सिंग। तो उनके उसके लिए वो नहीं है अभी। तो हमारा रोज ही 1-2 लोग हम कम ही होते हैं वहाँ पे। तो भी कैसे भी करके जो भी काम था मैंने निपटाया, मैं निकली। मुझे बहुत ही खुशी थी कि चलो मैं उसको टाइम पे पहुँचाऊँगी। करके मैं घर पे आई अराउंड 4:10, और 4:30 को उसको मुझे पहुँचाना था वहाँ पे। और उस टाइम पे, यानी यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है जहाँ पे मुझे उसको पहुँचाना था।
एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, मैं जैसे ही घर पे आई तो समझ लो एक बड़ा ब्रेकडाउन जैसा ही था घर पे आने के बाद। तो वो थोड़ा था। उसके बाद उस टाइम पे तो मुझे ऐसे ही लगा कि यार मैं घर पे अभी आई हूँ और ये सब है, एक एक टाइम पे तो मैं नेगेटिव में चली भी गई। पर तुरंत ही मैंने ये मैग्निफिसेंट आउटकम का चैप्टर ऑलरेडी हमने पढ़ा था, तो मैं तुरंत ही उसमें सोचने लग गई कि नहीं चलो जो भी है, ये कुछ ना कुछ मेरा टेस्ट है। तो मैं तुरंत ही यानी सिचुएशन तो ऐसी थी जो रिएक्शन की टाइप की सिचुएशन थी, जिसमें आप नेगेटिवली रिएक्ट कर जाते हो, आप उसमें चले जाते हो यार ये कैसा है कि अभी मैं आई हूँ घर पे और ये सब चीजें मुझे देखनी पड़ रही है, उस टाइप की फीलिंग्स। पर मैं उसमें जाने के बजाय मैं धीरे 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 करके अपने आप को वापस ले आई, वापस में अच्छे ग्रेटफुल में रहने लगी। तुरंत ही मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया उसी टाइम पे, और धीरे धीरे चीज अपने आप बदल गई, धीरे धीरे करके वो चीजें इतने अच्छे से हो गई कि उसका बेस्ट आउटकम मिला उसके बाद। यानी जो भी हुआ इतना बढ़िया हुआ उसके बाद, मैं आपको क्या बताऊं। जो बर्थडे में तो था, पहुंच तो गए, थोड़ा सा लाइक 5-10 मिनट्स लेट भी हुआ, पर यानी तो भी चीजें बहुत ही अच्छे से हो गई। मेरी तो नीयत थी टाइम पे पहुंचने की, पर जो हालात थे घर पे आके उसके हिसाब से लेट हो गया। तो यानी जो भी हुआ चलो ठीक है। पर उसके बाद का जो आउटकम था, जो बर्थडे में उसको जाना था, जो यहाँ पे हुआ, और उसके बाद जब मैं भी घर पे आई, मुझे जो काम थे सब कुछ इतने अच्छे से हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। और ऐसे कई चीजें कल हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी, जहाँ पे मैंने ये अपना ग्रेटिट्यूड का पावर यूज किया, शुक्राना वाला पावर यूज किया, और चीजें अपने आप अच्छी होती चली गई। और ये जो ब्रेकडाउन भी आया वो मुझको बहुत ही बड़ी चीज रियलाइज करवा के गया कि मेरे अंदर का क्या ऐसी थिंकिंग थी मेरी पास्ट में। मतलब जब से भी ये हुआ था, कितने सालों से एक मेरी एक थी जो प्रैक्टिस थी, उसके ऊपर का मुझे रियलाइजेशन हुआ, बहुत बड़ा रियलाइजेशन। उसके लिए मैंने बहुत माफी मांगी सुप्रीम से कि हाँ मुझे माफ कर दो, ये मेरी ऐसी थिंकिंग थी या मेरा ऐसा जो भी था जिसकी वजह से ये बार बार हो रहा है। तो उसके लिए मैंने माफी भी मांगी। रास्ते में जब मैं ड्राइव कर रही थी उसी टाइम पे मुझे ये सब रियलाइज भी हो रहा था। और उसके बाद की तो मैंने एज आई सेड बहुत ही अच्छा हुआ था। ओके, सो लेट्स सी, किसी और को भी अगर छोटी छोटी भी शेयरिंग है तो आप जरूर शेयर करो। आपकी शेयरिंग से बहुत सबको फायदा होता है, सबको भी एक अलग तरह का एक विश्वास बनता है, क्योंकि ये सब चीजें ऑफकोर्स अनसर्टेन चीजें होती है, हम उसको देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि हाँ अपनी शेयरिंग्स करें, जिससे सभी लोगों को बहुत फायदा होगा। ओके, सो ये आप फरी यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर व्हेन यू बिगिन वर्किंग। Okay, when you begin working with the creation process, you might want to start by attracting something unusual. When you specifically attract something unusual, you will be left in no doubt about your power when you receive it. One young जैसे पहले भी बोला था कि क्रिएशन प्रोसेस जब आप चालू करते हो, वैसे तो अपनी लाइफ आपने खुद ने ही क्रिएट की है, आप जाके देखोगे तो धीरे धीरे आपको एहसास भी होगा कि हाँ यहाँ पे मेरी ऐसी थिंकिंग थी, यहाँ पे मेरी ऐसी थिंकिंग थी। तो जो भी है आपकी लाइफ अभी जो है आपने ही क्रिएट की है, वो तो पहले आप एक्सेप्ट कर लो। दूसरी चीज, अभी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करना है। तो छोटी छोटी चीजों में आप जब ट्राई करते हो कि एकदम जैसे छोटी छोटी कोई भी चीजें हैं, तो उसके साथ आप ट्राई करते हो, तो जो अनयूजुअल चीजें होती है वो आप अट्रैक्ट करने लगते हो, राइट। यहाँ पे कई कई लोगों ने किया होगा, जैसे आज आमिना ने और अनुष्का ने, जिसका नाम पहले राजेश्वरी था, हमारी जो फ्रेंड फ्रेंड है राजेश्वरी, उसका नाम पहले राजेश्वरी था, उसके मैरिज के बाद ये नाम बदल गया। तो उसने भी हमारे ग्रुप में ये शेयर किया
कि कभी उसने ऐसा रेनबो नहीं देखा। तो कभी-कभी आप खुद मतलब ये चीज़ें आप खुद नोट करोगे कि पहले वो चीज़ें आप कभी नोट नहीं करते। ऐसा नहीं था कि रेनबो उसकी लाइफ में नहीं था, कई बार आया होगा, पर बिकॉज़ वो अपने राइट माइंडसेट में नहीं थी, तो उसने कभी वो रेनबो देखा ही नहीं। तो उसी तरह जब आप ये वाली प्रोसेस में आ जाते हो, जैसे ही आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करने लगते हो, ऐसी बहुत सारी अनयूजुअल चीज़ें आपके साथ होगी। और आपको जब ये अनयूजुअल चीज़ें होती हैं, तब आपको ये पावर पे एक विश्वास बनने लगता है कि हाँ, ऐसा पावर है। हाँ, ऐसा कुछ तो है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। ऐसी कोई तो पावर है जो हमेशा मुझे नच करती है दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, कुछ मेरे खुद के लिए, खुद लोगों के लिए अच्छा करने के लिए। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। One young woman began by choosing to attract a specific flower, a white calla lily. She imagined holding the flower in her hand, smelling the flower, and she felt having that calla lily. The 2 weeks later, she went to a friend's house for dinner, and there in the centerpiece of the table was a bouquet of white calla lilies, the very flower and the color she had imagined. She was excited to see the lilies, but she did not say anything to her friend about her imagined flowers. As she was walking out of the door at the end of the evening, her friend's daughter spontaneously plucked one white calla lily from the vase and put it in her hand. तो ये देखो यहाँ पे कैसी यानी एकदम अनयूजुअल चीज़ें ही होती है, ऐसे ही होता है। तो उसने ये एक यंग वुमन थी, उसने उसको ये कैला लिली का जो व्हाइट फ्लावर था उसको बहुत पसंद था, तो वो ऐसे ही इमेजिन कर रही थी। कभी-कभी मेरे साथ भी होता है कि कोई चीज़ अगर मुझे पसंद है तो मैं ऐसे ही इमेजिन करने लगती हूँ और मैजिकली वो चीज़ कहाँ से मेरे पास आती है मुझे ही मतलब वो मैं हैरान हो जा अब तो मैं हैरान नहीं होती क्योंकि बहुत बार हो चुकी है। पर जब मैं इनिशियली मैं करती थी तो मैं हैरान हो जाती थी कि वॉव! ये कैसे चीज़ें होती है, यू नेवर नो। तो ये लंग यंग लेडी के साथ भी ऐसे ही हुआ, वो ऐसे स्मेल भी कर रही थी, वो फ्लावर को अपने हाथ में लेके ऐसे उसको टच करके भी फ़ील कर रही थी, अपने माइंड में यानी विजुअलाइज़ कर रही थी। और उसके बाद क्या हुआ 2 हफ्ते के अंदर जब वो अपने फ्रेंड के घर पे गई डिनर के लिए, तो वहाँ पे ही सेंटर पीस पे ये फ्लावर्स पड़े थे। पर उसने कुछ बोला नहीं अपनी फ्रेंड को या किस कुछ उसके बारे में बात भी नहीं की। बस वो फ्लावर को देख के खुश हुई, उसको अच्छी वाली फीलिंग्स देती रही, वो अच्छा फ़ील करती रही अंदर से जो भी था। और जब वो डिनर करके निकल रही थी, तो उसकी डॉटर ने उसकी फ्रेंड की डॉटर ने उसको हाथ हाथ में लाके ये फ्लावर दिया। तो ये कितनी अजीब-सी बात होती है पर ये होता है। ये सब चीज़ें होती है जब आप लव देते हो, जब आप गुड फीलिंग्स में रहते हो, जब आप कुछ भी यानी आप जब ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी ज़ोन में रहते हो, आपकी एक-एक छोटी-छोटी चीज़ें भी वो फुलफ़िल होने लगती है। छोटी-छोटी जो आपकी विशेज़ होती है, वो भी फुलफ़िल होने लगती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया है। और यहाँ पे रोंडावन ने जो भी एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं, कुछ ना कुछ रियल लाइफ़ में से ही लिए हैं, तो आप ये भी हमेशा याद रखना। ओके, इमेजिनेशन ये यू कैन रीड फॉर Yeah. Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire, you will what you imagine, and at last you create what you will. George Bernard Shaw, या 1856-1950. तो ये जो नोबेल प्राइज़ विनिंग प्लेराइट हैं, उन्होंने बोला कि इमेजिनेशन ही बिगिनिंग होता है कुछ भी क्रिएशन का। आप ये दुनिया में जितने भी क्रिएशंस देख रहे हो, कहीं न कहीं पे किसी को फर्स्ट उसका विचार आया था, कि हाँ, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ करना है। तो ये एक पहले थॉट आता है, उसके बाद वो एक इमेजिनेशन आती है, कि हाँ, ऐसा मुझे करना है या ऐसा मुझे चाहिए। अगर अभी इलोन मस्क की बात करें, आप उनके इंटरव्यूज़ देखना। उनके इंटरव्यूज़ में उन्होंने बताया है कि जैसे निकोला टेस्ला का ये कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया ना इलेक्ट्रिक कार का,
तो कहीं ना कहीं पे पहले उनको एक विजुअलाइज किया कि पूरे रोड्स के ऊपर उनकी ये जो इलेक्ट्रिक कार है वो चल रही है। अभी बनी नहीं है कार, उससे पहले ही वो विजुअलाइज कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको भी अगर कोई भी आपका सपना है, आपको पहले विजुअलाइजेशन से ही उसकी क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। और आपको जो भी चाहिए वो आपको गिव करना होता है। तो ये बात आप अपने अंदर बिल्कुल आत्मसात कर ले, अपने अंदर उतार ले, उसको मतलब सबकॉन्शियस में बिल्कुल बिठा दे कि जो भी आपको चाहिए हमेशा आपको देना पड़ेगा। जो भी है, लव देना है, रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देनी है, अगर टाइम की वैल्यू करनी है तो वैल्यू टाइम को देना है। सभी चीजें आपको, अगर मनी चाहिए तो मनी आपको देना है किसी न किसी को किसी तरह से। यानी जो भी आपको चाहिए वो आपको हमेशा देना रहता है पहले। आप ये यूनिवर्स के लॉ को बदल नहीं सकते। आप बोलोगे नहीं मुझे तो ये चाहिए, नहीं मुझे तो ये चाहिए, आपने दिया उसको पहले। तो ये होता है। लेट मी सी। ओके, वी हैव 5 more minutes. So let's read this 2 paragraphs. Okay. Okay. Give it, receive it. Remember that the law of attraction says whatever you give, you receive. If you think of the law of attraction as a mirror, an echo, a boomerang, or a copying machine, it will help make you clearer on what to imagine and feel. The law of attraction is like a mirror because a mirror reflects back exactly what is in front of it. The law of attraction is like an echo because whatever you give out exactly the echo that comes back. The law of attraction is like a boomerang because whatever boomerang you throw is the exact same boomerang that comes back to you. The law of attraction is like copying machine because whatever you give is reproduced exactly and you will receive back an exact copy. तो ये A few बहुत years ही okay. या ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो उसके पहले मैं ये पूरा इटरेट कर देती हूँ यहाँ पे जो पॉइंट है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली आपका मिरर रिफ्लेक्शन है, ये आप समझ लो। जो भी आप सोचते हो, जो भी आप करते हो, जो यानी जो सोचते होंगे वही वैसा ही आपके एक्शंस होंगी और वैसी चीजें आपके साथ होती होगी। तो जो भी है वो आपका पूरा ही मिरर रिफ्लेक्शन है, जो भी आपकी लाइफ है। तो ये आपको समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आप देते हो वही आपको मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मैथमेटिक्स की तरह फाइनेस्ट काम करता है। जो मैथमेटिक्स के लॉ होते हैं उसी की तरह ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम फाइन ट्यूनिंग के साथ काम करता है। जो भी आप देते हो वही एग्जैक्टली आपके पास एको बन के वापस आता है। जब बूमरैंग फेंकते हो तो कैसे वापस आता है, सेम उसी तरह, लाइक अ कॉपिंग मशीन। तो ये आपको बहुत ही समझना जरूरी है। जो भी आप दोगे, अगर आप अपने बच्चों को प्यार देते हो तो वही सेम प्यार और रिस्पेक्ट आपको वापस मिलेगा। अगर आप मनी के लिए बहुत शुक्रगुजार रहते हो, मनी को अच्छी वाली फीलिंग्स हमेशा देते हो, तो हाँ वो मनी भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना होगा और वो मनी भी आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार ही बैठा है। बस आपको अपनी गुड फीलिंग्स देनी है, नेगेटिविटी में से बाहर आना है। जब नेगेटिविटी होती है हमारे अराउंड, तब ये सब चीजें जैसे मान लो बंद ही हो जाती है आनी, क्योंकि नेगेटिविटी उसको ओवर पावर करती है। जब ये डाउट्स होते हैं, फियर होते हैं, वरी होती है, ये सब चीजें जो भी अच्छी चीज है हमारे अंदर जो बसी हुई है उसको ओवर पावर करने लगती है। तो उसकी वजह से जो हमारे सपने हैं या जो भी हमारी, हम जिसके लिए बने हैं, यहाँ पे आए हैं धरती पे, कुछ ना कुछ हम अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। लाइफ को पूरी मीनिंगफुल तरह से जीने आए हैं यहाँ पे। और हम आ गए, लग गए पूरे नेगेटिविटी में, हमें पता ही नहीं था। पर चलो अब पता चल रहा है, अब सीख रहे हैं, तो अब पक्का 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 हम उसको कर सकते हैं लाइफ में अप्लाई। दैट्स फाइन अमीना। ओके, नो प्रॉब्लम।
Okay. A few years, okay. Shall I read? Yeah. A few years ago, I was in Paris for my work, and I was walking down a street when a woman rushed past me wearing one of the most beautiful skirts I had seen, incredibly detailed in a Persian style. My reaction was love. What a beautiful skirt. हाँ, तो ये इन्होंने ये स्कर्ट को देख के इतना अच्छी फीलिंग्स दी उस टाइम पे। पेरिस में कहीं गई होगी, वहां पे किसी लेडी को ये ब्यूटीफुल स्कर्ट पहने हुए देखा, तो इतनी इंट्रिकेटली डिटेल थी वो, पर्शियन स्टाइल में बहुत ही अच्छी तरह से वो बनी हुई थी ये जो स्कर्ट थी। तो उनका रिएक्शन क्या था? लव। कितनी अच्छी स्कर्ट है। तो यहाँ पे ये भी आपको समझने की जरूरत है। कभी कभी किसी और को कुछ पहने हुए या देख के हमें, या तो हमें लैक फील होता है कि या काश मेरे पास भी ऐसी शर्ट होती, यानी ये नेगेटिव फीलिंग है। पर आप वो देख के उसको बोलते हैं कि वाह ये कितनी अच्छी स्कर्ट है, कितनी जबरदस्त बनी हुई है, जिसने भी उसको बनाया कितने प्यार से बनाया है, कितने लव दे के बनाया, कितनी लव वाली फीलिंग्स के साथ बनाया। तो ये आप अच्छी फीलिंग्स दे रहे हो, आप अच्छा फील भी कर रहे हो उसके साथ साथ। तो ये आपको चेक करना है। अगर कहीं पे आपने कोई चीज देखी और आपको वहां पे लैक आया, या आपको वहां पे लव वाली अच्छी वाली गुड फीलिंग्स आई, तो ये आपको बहुत ही जरूरी है। आपको अपने आप को ही कैच करना है, आप कौन सी वाली फीलिंग्स दे रहे हो उस टाइम पे। अगर आपने किसी को कहीं पे ट्रैवल करते हुए पिक्चर्स रखते हुए देखा फेसबुक पे कि हाँ यहाँ पे ट्रैवल करे, तो उस टाइम पे आप उसको अच्छी फीलिंग्स देते हो कि वाह कितना अच्छा प्लेस है, जो भी है ये प्लेस कितना बढ़िया है, यहाँ पे जाके इनको कितना मजा आया होगा। मतलब ये अच्छी वाली फीलिंग्स दे रहे हो आप खुद अच्छे, बहुत ही अच्छा अंदर से फील कर रहे हो। ये बहुत ही जरूरी, जो भी आप देते हो वही आप रिसीव करोगे। अगर आपने वहां पे जेलेसी या एनवी फील कर लिया, तो वैसे ही सर्कमस्टांसेस आपको वापस मिलेंगे। ये बहुत ही जानना समझना बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ पे उनकी पूरी ये बता रही है कि कैसे उन्होंने ये उसको बहुत ही अच्छी गुड फीलिंग्स दी थी, और कैसे उनको ये वापस उनको ये स्कर्ट मिलती है। तो ये वाला एक पैराग्राफ रीड कर लो, उसके बाद हम क्लोज करते हैं। Pari, you can read this whole paragraph. Okay. A few weeks later, I was happily driving to work in Melbourne, Australia, when I was forced to stop because another driver was trying to Do do it. an illegal U-turn at an intersection. As I looked at the store window when I had been forced to stop, I saw the exact same skirt I had seen on the woman in the streets of Paris. I could not believe my eyes. When I got to work, I called the store and they told me they have received only one skirt from Europe in that style, and it was the skirt in the window. Of course, the skirt was my size. When I went to the store to purchase the skirt, it was reduced to half price, and the store attendant told me they had not ordered the skirt, and that it had just appeared in their order accidentally. तो ऐसी ऐसी चीजें होती है, राइट। मैं कल अपनी बात करूँ कि मैं एक स्टोर में गई, मुझे वहां पे ये लेना था कुछ चीज। तो वहां पे मतलब ये सर्विस खरीदनी थी, एक्चुअली नॉट चीज नहीं, कुछ चीज नहीं लेनी थी, सर्विस खरीदनी थी। तो ये सर्विस खरीदनी थी उनके पास। मैंने उनको बोला कि हाँ मुझे इतनी प्राइस में और यही सर्विस चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे पास ऐसी तो कोई सर्विस है नहीं। जो आप जो सर्विस की बात करें, जो आपके पास है, वो तो हमारे पास पहले एज ए लेगेसी ये वाली स्कीम थी, अब वो स्कीम नहीं है। तो भी मैंने हार नहीं मानी। मैं वहां पे खड़ी होते खड़े खड़े ही वहां पे मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड फील किया, और मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए शुक्राना करते गई, करते रही गई। अचानक से वो पर्सन बोला कि ओके ठीक है, लेट मी लुक इन अदर, लाइक उसके अदर सिस्टम में उसको देखना था। वो वहां पे गया, उसने देखा, और एग्जैक्ट सेम सर्विस उसको मिल गई वहां पे। मुझे एकदम से अपने इसके ऊपर, यानी मुझे तो डाउट था ही नहीं वहां पे कि ये नहीं होगा।
मुझे बहुत पक्का यकीन था कि कुछ ना कुछ तो इनको जरूर मिलेगा जो मुझे चाहिए। और वैसे ही हुआ। जब उन्होंने सबने मना कर दिया, जो स्टोर में दूसरे लोग, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, वो तो स्कीम अभी हमारे पास नहीं है, वो तो हमारी लेगेसी स्कीम थी जो कब से खत्म हो चुकी। तो भी बिकॉज आई वॉज सो ग्रेटफुल एंड आई वॉज सो पॉजिटिव, मुझे एक भी अंदर डाउट नहीं था, मुझे वो सर्विस मिली और मैं वो घर पे लेके आई। यानी बहुत ही अच्छे से ये जो प्रैक्टिस थी मेरी कल हुई। 2-3 बार ये सेम चीजें हुई। तो ये यहाँ पे भी ये स्कर्ट की बात कर रही है कि जब वो तो यूरोप में देखा था उन्होंने स्कर्ट, और वो तो आ गई घर पे, ऑस्ट्रेलिया में थी, ड्राइव कर रही थी, एक दुकान उनको मिली वहां पे रोड के ऊपर, और वहां पे सेम एग्जैक्ट शर्ट उनको दिखी। और स्टोर मैनेजर ने, या जो भी स्टोर में जो काम करते होंगे बंदे, उन्होंने बताया कि ऐसी एक ही स्कर्ट यूरोप से आई थी और उनके ऑर्डर में भी नहीं थी, एक्सीडेंटली आई थी वो स्कर्ट। यानी कितना अजीब कोइंसिडेंसेस होते हैं, पर ये कोइंसिडेंस नहीं है एक्चुअली, बिकॉज उन्होंने वो थिंक किया था, उसको बहुत ही अच्छी गुड फीलिंग्स दी थी, छोड़ दिया था उसके ऊपर, तो ये शर्ट उनके पास खुद चल के वापस आई। आपने देखा, यहाँ पे पढ़ा आपने। तो वैसे ही लाइफ में होता है, अगर आप जहाँ पे अच्छी फीलिंग्स देते हो, गुड फीलिंग जोन में रहते हो, हमेशा खुश रहते हो, हमेशा ही अच्छा सोचते हो, अच्छे से जो भी चीज आपको पसंद है उसको गुड फीलिंग्स देते हो, तो वैसा आपके साथ भी बार बार होगा। कैसे होगा पता नहीं, पर जरूर होता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होते। ओके, सो लेट्स रीड अवर हार्ट थॉट। सो आज का हार्ट थॉट बहुत ही सिंपल येट वेरी पावरफुल है कि सम पीपल डोंट नो हाउ टू से नो, द ओनली वे दे नो हाउ टू से नो इज टू बी इल। यानी कभी कभी आपको अगर ना बोलना पड़ता है तो आपको बोलना है। अगर आपके अंदर से आ रहा है कि आपको वो चीज नहीं करनी है, तो आपको बेशक मना करना है वहां पे। और अगर कई कई लोग होते हैं कि जो जिनको ऐसा होता है कि नहीं, मैं तो मना नहीं कर सकती, या मैं तो मना नहीं कर सकता, नहीं, तो वो फिर किसी न किसी चीज को वो उसको, मतलब वो जो भी अंदर अपने अंदर वो ग्रज रखते या रिसेंटमेंट होती है जो भी, बिकॉज वो करना नहीं चाहते थे तो भी उन्होंने किया, तो किसी न किसी तरह से वो बीमारी बन के भी वापस आती है, ये सब नेगेटिव चीजें। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी। आई एक्सेप्ट व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। इफ आई थ्रू अ हॉट पोटैटो एट यू, what would you do with it? Would you catch it? Would you hold it while it was burning your hand? Why would you even catch it? Why don't you just step out of the way? It is possible to refuse anything, even a gift. Are you aware of that? हाँ, तो अगर कोई चीज आपको जबरदस्ती कोई दे रहा है, जो आपके पास एज ए हॉट पोटैटो आ रहा है, तो बेशक आपके पास ही चॉइस है, आपको वो लेना है या नहीं लेना है, या तो आपको वहां रास्ते में से हट जाना है। तो ये हमेशा याद रखें कि जो भी बेस्ट है वही आप अपने खुद के लिए एक्सेप्ट करते हो। अगर किसी ने आपके ऊपर कोई चीज ऐसी थोपने का ट्राई किया, थोपा आपके ऊपर, जो आपको पसंद नहीं है, जो आपकी डिजायर नहीं है, जो आपको नहीं चाहिए, तो बेशक आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे आप अपने खुद के लिए स्टैंड लो, और वहां पे जहाँ पे मना करने की बात आ रही है वहां पे मना करो। ये बहुत ही जरूरी होता है। जहाँ पे ना बोलना है वहां पे आपको अपने खुद के लिए ना बोलना है। अगर आपके खुद के लिए वो चीज नहीं है, आपको खुद को वो पसंद नहीं है, आपको वहां पे ये चीज नहीं करनी, आपके अंदर आपको जमीर मना कर रहा है, तो बेशक आपको वो चीज नहीं करनी है, जो भी हो जाए। इसीलिए आज का ये जो हार्ट थॉट है, आई एक्सेप्ट व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, और इनफैक्ट आई वुड से आई एक्सेप्ट ओनली दैट इज बेस्ट फॉर मी। तो ये भी बहुत ही अच्छा हार्ट थॉट है, बहुत डीप हार्ट थॉट है। समझने की बात है कि हम अपने खुद के ऊपर भी कभी कभी बहुत मतलब क्या बोलते हैं, जैसे अपने खुद के ऊपर भी बहुत हम
खुद के ऊपर एक सजा करते, पनिश करते अपने आप को, कि जब कोई अपने आप को वीक फील करते हो, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपको हमें आपको ऐसी भी चीज करवाती है या देती है हमें, कि हमें जो नहीं करना है, हमें जो नहीं चाहिए, तो भी हम करते हैं। यानी अपने खुद के ऊपर तो हमने वही किया ना, एक तरह का जुल्म कर दिया। तो हमें अपने आप को भी समझना है, जब हम मिरर प्रैक्टिस करते हैं तो हम खुद के ऊपर खुद को एक विश्वास करने लगते, खुद के ऊपर हम खुद से प्यार करते हैं कि हाँ, हमारे लिए जो अपने खुद के लिए बेस्ट है वो ही हमें चाहिए। ओके, सो today I have to go to work, but a little later, so we can start. We can do a meditation. All of you are ready for the meditation, so let's do our meditation. Need groceries, but payday isn't. Okay, music सुनाई दे रहा है सबको? If it's too loud, please let me know. Okay, so everyone, please sit for the meditation the way it's supposed to be. Your back should be straight. Spine अपना पूरा सीधा होना चाहिए. Then your hands facing the heavens above. सीधे रखने हैं हाथ आपको, खुले रखने हैं, रिसीविंग मोड में रखने हैं आपको अपने हाथ, और पूरा सीधा बैठना है। अगर आप चेयर पे बैठे हो तो ऐसे बैठो कि आपके जो पैर है वो जमीन को टच करें। एंड नाउ लेट्स क्लोज योर आईज। Close your eyes and go deep within. Now let's relax our body by deep breathing. So let's take a few deep breaths. Let's inhale gratitude. Hold. Release. Again. Let's inhale love. Hold. आपके रग रग में प्यार बह रहा है, सुप्रीम के लिए जो प्यार है। Make a good smile on your face. Now release. Release all the negativity, all the doubts, all the fears. पूरा जो fear है आपके बॉडी में से निकल के जा रहा है, मदर अर्थ की तरफ जा रहा है। Okay, let's again inhale. And release all the negativity. अभी अपना पूरा फोकस अपने दिल की तरफ लेके जाए और ऑब्जर्व करें कैसे धड़क रहा है आपका दिल। आपका दिल जो आपको बरसों से आपको इतना साथ दे रहा है, आपके भी पैदा होने से पहले वो पैदा हो चुका था।
अपने दिल को थैंक यू बोले, दिल से थैंक यू बोले। अच्छी फीलिंग्स के साथ अपने दिल को थैंक यू बोले। Now let's imagine the white light entering our crown chakra. ये जो white light है अपने क्राउन चक्रा में से ऊपर आसमान की ओर से आ रही है और अभी हमारे अंदर एंटर कर रही है। अभी हमारे ब्रेन को, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को पूरा क्लींस कर रही है। पूरी जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी इसके अंदर है, हमारे ब्रेन के अंदर जो भी थॉट्स है, टॉक्सिक थॉट्स है, जो भी है, नेगेटिविटी है, सब पूरा ये वाइट लाइट उसको पूरा ही क्लींस कर रही है, उसका शुद्धिकरण कर रही है। एक एक ब्रेन सेल्स के अंदर जाके जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसमें सबको निकाल के ला रही है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर उसको लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल रही है। ऐसा इमेजिन करें। एक एक सेल को क्लींस कर रही है हमारे ब्रेन के अंदर। Okay, now this white light is entering into the face. पूरे मसल्स को रिलैक्स कर रही है और स्ट्रेंथन कर रही है। हमारा जो ग्लो है वो बढ़ा रही है और जो भी नेगेटिविटी है उसको अपने साथ लेके निकाल रही है वो। Now this white light is moving towards your neck, your throat. आपके नेक के अंदर आपके जो भी हमारा जो कम्युनिकेशन का है जो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने आप को एक्सप्रेस अच्छी तरह से नहीं कर पाते, वो सब चीजों को स्ट्रेंथन कर रही है वाइट लाइट। और पूरी जो गंदगी है उसको निकाल रही है हमारे बॉडी में से। Now it's moving towards your heart. First towards your shoulders and hands. हमारे हाथ के अंदर पूरा जो भी है टॉक्सिसिटी वो निकाल के। Hi, I'm Scarlett De La Torre, and I am a White light. sound meditation facilitator. A sound और वो निकाल के पूरा अपने साथ पूरी टॉक्सिसिटी लेके जा रही है। Now this white light is entering in your heart, in your chest area. अपने हार्ट को वो पूरी तरह से एक्सपांड कर रही है, बढ़ा रही है और प्यूरिफाई कर रही है। हार्ट के एक एक सेल को प्यूरिफाई कर रही है। और हमारे दिल में से एक रोशनी की तरह एक लाइट निकल रही है, सब पूरी जगह पे फैल रही है। अभी ये वाइट लाइट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ एंटर हो रही है, सोलर प्लेक्सस में। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से क्लींस कर रही है। जो भी वहाँ पे जो भी डर्ट पड़ा है बरसों का जो है उसको पूरा निकाल रही है वाइट लाइट। एक हमारे ऑर्गन्स को क्लींस कर रही है, हमारे टिश्यूज को, हमारे मसल्स को। Now it's entering to our reproductive organs, our excretory organs also.
Take a deep breath in and imagine the white light entering your hips area and in your thighs. पूरे मसल्स को क्लींस कर रही है, हमारे बोन्स को मजबूत कर रही है, हमारी आत्मा को स्ट्रेंथन कर रही है, हमारी गुड फीलिंग्स को स्ट्रेंथन कर रही है, हमारे पॉजिटिविटी को बढ़ा रही है। और ये पूरी वाइट लाइट अभी थाई में से निकल के पूरा काफ मसल्स में से प्यूरिफाई करके हमारे फीट में जा रही है। और ये पूरा फीट के अंदर से भी पूरा क्लींस करके टॉक्सिसिटी को बाहर निकाल के मदर अर्थ के अंदर वो प्रवेश कर रही है, हमारी धरती माता के अंदर। Now the same again white light is entering and circulating through your body. पूरा सर्कुलेट करके पूरे अपने आप को क्लींस कर रही है, प्यूरिफाई कर रही है। Life is truly, truly, truly a blessing. Our life is truly a miracle. अभी हम यहाँ पे हमारी बॉडी जो हमें हमेशा साथ देती है, हमारी जो हेल्थ है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम जो भी ये सीख रहे हैं वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि धरती पे हम सीखने तो आए हैं। Every day in every way I'm getting better and better. I am loving more and more myself. I am love, I am peace, I am harmony. I love and accept myself as I am. I value and trust myself. I am connected to my higher self. And I am connected to the supreme power. I always listen to my intuition every day, every moment I listen to my intuition. I attract money easily and effortlessly. I love money. I use it wisely, judiciously and constructively. Okay, now let's invite all the energy in your hands. And bless our conscious, subconscious mind. Let's thank our body, each part of our body, and bless it with supreme love and power. Ears, nose, face, neck and shoulders, hands, chest area, our heart, the whole digestive system and the whole spine, hips, thighs, knees, calves, feet area, sole of the feet. Let's thank trillions of cells in our body, all the organs, our skin, fibers, tissues. Thank you, thank you, thank you. Okay, so how are you all feeling after the meditation? Nice. इतने टाइम से मेडिटेशन करने के बाद कोई फर्क लगा? तो ये सब प्रैक्टिसेस के साथ दोनों फर्क लगे थे। एक अंदर से पीस आता है, पीसफुलनेस। Okay, so see you all tomorrow. Love, light and abundance. Thank you so much to all of you for joining. Thank you, Alexia. Thank you. Thank you.